Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Arijit Mandal. I am working as an assistant lecturer at Akash Institute. This is my very first job, guys. So I thought let's share my experiences with all of you so that it can help you at a certain levels. And you also get to know that how to become an assistant lecturer at educational institutes. So this video is dedicated to all of my teachers throughout my journey. Okay, now, today in this video, we will discuss the four aspects. First, about the job profiles. Second, about the salary structure. Third, about the entire recruitment process. And the fourth, the career growth at these institutes. And at last, I will give you some tips or I will talk certain points that can help you in the recruitment process and you can get this job. So basically, this channel, that is Physics in Light channel, so it is renamed as Physics in Light. It was earlier Physics Craze. This Physics in Light channel provides you videos related to jobs notification for basic science and engineering students. It provides the videos related to national and international internship. It also provides the videos related to free courses and programs that runs by IITs, IISERs and NITs. We also provides videos related to physics teaching, that is physics topics related to IIT JAM, BSc levels physics. So stay connected with our channels. I have planned for 11 or 12 more videos. If you don't want to miss all those important videos, stay connected with this channel and join our Telegram group. The Telegram group link is given in the description box. So let's talk about the job profile of an assistant lecturer at this educational institutes. So the main job profile is to teach JEE or NEET level students to solving their problems and to teach in organized and concise manner. So the job role is to teach JEE or NEET level engineering or medical students and solving their problems. So the salary structure is, if I talk about the salary structure, so the starting salary is about 6 to 9 LPA, and with experiences, this salary may increase. Okay. Now, if I talk about the recruitment process, so the recruitment process, I divide the recruitment process into two parts. First, on campus and second, off campus. ऑन कैंपस मीन्स तो आपको पता ही है कि कंपनीज आपको कैंपस में जाएगी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस करेगी, और ऑफ कैंपस में आपको लिंक्डइन पे जाकर कब नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कब जॉब वैकेंसीज आ रही है, उसके अगेंस्ट आपको अप्लाई करना है, या फिर आपका ऑफिशियल वेबसाइट चेक करना है, या फिर आपको HR को मेल करना है और HR के कॉन्टैक्ट में रहना है. सो ऑन एंड ऑफ कैंपस का दोनों का प्रोसेस सेम है, दैट इज जो रिक्रूटमेंट स्टेप्स हैं वो सेम ही है. सो मैं डिस्कस करता हूँ. So you have to go through 4 steps. The very first one is the resume shortlisting. You have to make a good resume, and so that you are get selected. You get selected by the resume round. फिर आपका होगा सब्जेक्ट टेस्ट. सब्जेक्ट टेस्ट में क्या होता है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, सपोज फिजिक्स है, सो फिजिक्स सब्जेक्ट में आपको 1.5 घंटे से 2 घंटे टाइम दिया जाएगा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एग्ज़ाम होगा जो आपको लैपटॉप से देना है. तो 1.5 से 2 घंटा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, 40-50, जो 11th और 12th के सिलेबस में बेस में होता है, और क्वेश्चंस का लेवल नीट के लेवल पे रहता है, मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं रहता, तो वो क्वेश्चंस आपसे हो पाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं. सो दैट इज़ अबाउट द सब्जेक्ट टेस्ट, दैट इज़ यू हैव टू अपीयर on the subject test, and the subject test about 1.5 hour to 2 hours, and you have to answer the objective questions. So the third process, the third step is demonstration. Basically आपका जो मेन जॉब रोल है टीचिंग है ना, पढ़ाना हमारा जो मेन जॉब रोल होता है हमारा. तो पढ़ाने के लिए तो वो लोग एक डेमो देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, दैट how can you teaching well.
सो आप कैसे पढ़ा सकते हैं अच्छे से, तो इसके लिए आपको एक 15 से 20 मिनट का एक डेमो देना पड़ेगा। 15 से 20 मिनट में आपका डेमो देना पड़ेगा, और इसके लिए आपको एक पीपीटी बनाना पड़ेगा, पावर पॉइंट में आपका स्लाइड्स बनाना पड़ेगा। सो वो लोग पहले से आपको टॉपिक दे देंगे, जो रिक्रूटमेंट टीम है, हायरिंग टीम है, वो आपको टॉपिक्स दे देंगे। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको से 9 to 10 स्लाइड्स बनाना है, और उस स्लाइड्स को आपको प्रॉपरली बनाना है, मतलब अच्छे से डायग्राम यूज़ करके, अगर फिज़िक्स का बात करें तो वेक्टर सिंबल इंक्लूड करके अच्छे से स्लाइड बनाना है, जो मतलब कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। और आप जब एक्सप्लेन करेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, ऐसा नहीं कि बोल के निकल गए। हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एनोटेशन यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ लिखना। आप स्लाइड्स में लिखेंगे माउस से, तो आपको लिखना होगा, आपको एग्जाम्पल से रिलेट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ अबाउट द डेमो। सो डेमो इज़ अबाउट 10 to 15 minutes or 20 minutes. So where you have to present a PPT in a organized manner. और वो डेमो आपका रिकॉर्ड होगा, जो रिकॉर्ड आपको मास्टर ट्रेनर जो रहेंगे, सीनियर्स फैकल्टीज़, वो आपको चेक करेंगे उस रिकॉर्डिंग्स को। सो मेक श्योर दैट योर डेमो इज़ गोइंग गुड, बिकॉज अब जो सिलेक्शन की मेन जो चांसेस है वो डेमो से ही होता है। मैं अगर 4 राउंड की बात करें, दैट इज़ रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, सब्जेक्ट टेस्ट, डेमो और लास्ट में HR राउंड, तो उसमें 50% और 60% वेटेज मोर और लेस डेमो से ही रहता है। सो डेमो राउंड इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राउंड। So after the demo round you have to execute you have to excel the HR round. HR राउंड में आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो जिसका आंसर आपको अच्छे से देना है। सम ऑफ द HR related questions, if I take example, so the first is, tell me about yourself. What are the strengths and weaknesses of yours? Why do you want to become a teacher? Why do you yourself in after 5 years? सो ऐसा क्वेश्चंस आपको HR राउंड में पूछा जाएगा। आप स्टडी कर सकते हैं इंटरनेट में फॉर मोर HR रिलेटेड क्वेश्चंस एंड प्रिपेयर वेल। सो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस मेनली 4 स्टेप्स: रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, सब्जेक्ट टेस्ट, जिस सब्जेक्ट में आपका होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी, और बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, वटेवर। द नेक्स्ट राउंड इज़ द डेमो राउंड और द डेमोन्स्ट्रेशन राउंड, जो मैंने बता दिया। फोर्थ, द लास्ट राउंड इज़ HR राउंड. So you have to execute all these rounds to get this job, and this is not not very easy, and this is not very much tough. It depends on you how you are preparing. Okay, the next aspect हमारा जो है, that is career. Basically हमें इधर selection के बाद ट्रेनिंग होता है, that is it is about 3 months training, and after 3 months training they will shift us into the centers where, जहाँ पर हमें सेंटर्स में पढ़ाना होगा, जो भी अक्रॉस थ्रू आउट द कंट्री बहुत सारा सेंटर्स होते हैं, तो जहाँ पर हमें आप पढ़ाना होता है, और उसके अकॉर्डिंग हम अभी असिस्टेंट लेक्चरर हैं, फिर सीनियर्स फैकल्टी, फिर एकेडमिक हेड, ऐसे करके करियर ग्रोथ होता है विथ टाइम। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द टिप्स, अगर मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूँ इस वीडियो में, और आप जिससे आपका ये रिक्रूटमेंट में हेल्प हो, सो दैट टिप्स विल बी: फर्स्ट, वर्क ऑन योर सब्जेक्ट, दैट इज़ आपका जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, आपको सब्जेक्ट की डेप्थ अंडरस्टैंडिंग 11th 12th लेवल, नॉट वेरी हायर लेवल्स, 11th और 12th लेवल का आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। आप अभी अगर कैंपस प्लेसमेंट में बैठेंगे तो आपके जो भी एग्ज़ाम्स होगा उसके साथ साथ आप थोड़ा 11th 12th का रिवाइज कर लीजिए, उससे आपका सब्जेक्ट टेस्ट निकल जाएगा। और डेमो तो इफ़ यू आर इन द ग्रेजुएशंस और पोस्ट ग्रेजुएशन, सो आपने काफ़ी सारे प्रेजेंटेशन दिए होंगे, तो वो आपको हेल्प करेगी इस डेमो राउंड में, जहाँ पर आपको अच्छे से बोलना है और अच्छे से प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। सो फॉर डेमो राउंड योर कम्युनिकेशन स्किल मैटर ए लॉट, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, हाउ यू आर इंटरेक्टिंग, how you are teaching, how you are explaining the facts, how you are relating with the examples. So your communications, your confidence, your attitude, your speaking skills, so all the soft skills, right? Time management, so all the soft skills matter
फॉर द डेमो राउंड एंड HR राउंड एज वेल। HR राउंड के लिए आपको कुछ HR रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। सो द टिप्स इज प्रिपेयर योर सब्जेक्ट नॉलेज एंड the 11th 12th syllabus. And the second, work on your communication skill, how to speak and how to teach. So yeah, communication skill को आपको improve करना है और आपका सब्जेक्ट नॉलेज में थोड़ा सा वर्क करना है। बस दैट्स अबाउट the that is from my side about this video. I wish आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। So stay connected with this channel for more such type of videos, and like, share and subscribe to this channel. Thank you very much for your patience.